Hello, dear students. Today, Maths Part 2, Chapter number 2, Exercise 2.3, and this is Geometric Progression, or you can say Geometric Series. Now, see question number 5 because you have completed from Exercise 2.3 till question number 4. So, now today, question number 5 onwards. So, question number 5, the sum of an infinite GP means geometric progression, is 5, and the sum of squares of these terms is 15. Find the GP. So, according to the question, it is given that sum of an infinite GP is 5. This means S infinity equal to 5. But in the second statement, in the second condition, it is also given that sum of squares of these terms is 15. So for the solution, first let an infinite GP be AR square, AR cube, and so on up to infinity. So you can say this series continuous up to infinity. So first term here of the given first term of this sequence A and common ratio AR upon A, that is R. And you know very well it is an infinite GP AR square, AR cube, AR raised to 4, AR raised to 5, and so on up to infinity. So what does it mean? This means the modulus of R, or you can say magnitude or modulus of common ratio, must be less than 1. So we should write here where mod R is less than 1. If mod of R is less than 1, so it is clear that mod of R square also less than 1. So we should write here clearly mod R less than 1 and mod of R square is also less than 1. We know that a formula S infinity equals A upon 1 minus R. This is the formula for the sum of infinite term of a GP, where A stands first term of the GP and R stands common ratio of the same GP. But it is given that S infinity equal to 5. So we should write here 5. So this implies that A upon 1 minus R equal to 5. It is equation number first. Or you can say A equal to 5 multiplied by 1 minus R, taking 1 minus R on the right hand side. तो कोई भी एक इक्वेशन फर्स्ट यहां पर एज्यूम कर सकते हो किसी को भी कि a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर. This is the first equation. After that, its second condition here, sum of squares of these terms is 15. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, square of AR, A square, R square of AR square, A square R raised to 4, and so on up to infinity. And this is the given, its sum is 15. We write here 15. So square of first term, that is A square, square of second term, so plus A square R square, plus square of the third term A square R raised to 4, plus and so on up to infinity equal to 15. If anyone is interested, you can write here also A plus AR square plus AR cube and so on. तो वो भी जीपी है, कंसिडर कर सकते हो. डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू जीपी. फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू जीपी मीन्स अब यहाँ पर जो इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर, देखो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द न्यू जीपी. तो a square r square upon a square, because it is a formula, t2 upon t1 becomes common ratio. So a square upon a square into r square upon a square becomes r square. So common ratio of new GP is r square and first term is a square. Therefore a square upon 1 minus r square equal to 15, because this is sum of the infinite टर्म्स ऑफ अ जीपी. तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, सेम इसके ही जैसा है. देखो यहाँ पर ए अपॉन 1 माइनस आर था क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं है टर्म्स के, यहाँ पर सभी के स्क्वायर्स हैं तो इनके भी यहाँ पर स्क्वायर्स हो गए. ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 15.
Therefore, a square equal to 15 into 1 minus r square. So we should write here this implies that, here read as, ये symbol को क्या read करोगे, implies that a square equal to 15 multiplied by 1 minus r square. अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो हमारे पास टू वैल्यूज हैं, एक तो है a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर, यहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, और एक है हमारे पास स्क्वायर ऑफ a इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी शुड राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर, ये a इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, और यहां पर यहीं पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि a यहीं पर है, तो स्क्वायर ऑफ a, तो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो टर्म होगा, जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो देयरफॉर 5 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर, तो 5 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड इसका सेम है, बट ए स्क्वायर की जगह पर हमें क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं 5 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 5 25 एंड स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टू टाइम्स सेपरेटली लिख देते हैं कि 25 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 15 एज इट इज हियर 1 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन में, जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a minus b into a plus b. You know very well this formula because you have studied in the previous standards. तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये अभी जैसे ऐसा नहीं कि ये नहीं शो कर रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 इज 1 स्क्वायर ऑल्सो, तो इट इज 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। तो फैक्टर्स ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। अब हम ये देखते हैं कि 1 माइनस आर इट इज इन बोथ साइड्स, इसको वन टाइम हमने कर दिया कैंसिल, मतलब ये हो गया डिवाइड, बिकॉज 1 माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें लेना है, तो 1 माइनस आर यहां पर हो गया कैंसल्ड। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है क्या है, 25 इंटू 1 माइनस आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर कर देते हैं, तो ये हो गया 25 इंटू 1 25 एंड 25 इंटू माइनस आर दैट इज माइनस 25 आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया 25 माइनस 25 आर। नाउ रिमेनिंग टर्म इन द राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, ये बहुत ही अच्छा है यहाँ एक टर्म, तो 15 इंटू 1 प्लस आर, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 15 इंटू 1 15 एंड 15 इंटू आर 15 आर। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मिलता है, अब उसको यहाँ क्लियरली लिख सकते हो कि देयरफॉर 25 माइनस 25 आर इक्वल टू 15 प्लस 15 आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टर्म्स आने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग कर देते हैं कि नंबर्स ऑन वन साइड एंड लेटर्स आर अनदर साइड। तो नंबर्स और लेटर्स इसको किसी भी साइड में यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, टेकिंग 15 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग माइनस 25 आर ऑन द राइट हैंड साइड, और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो टर्म अब मिलेगा, देखो 25 माइनस 15, या 25 माइनस 15 इक्वल्स 15 आर प्लस 25 आर। देखो प्लस 15 ट्रांसफर होके गया लेफ्ट में, तो माइनस हो गया माइनस 15, और माइनस 25 आर ये राइट में ट्रांसफर हुआ तो हो गया प्लस 25 आर। तो 25 माइनस 15 becomes 10 and 15 आर प्लस 25 आर becomes 40 आर। तो वी गेट 10 इक्वल टू 40 आर। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें 40 को भी ट्रांसफर कर लेना है इधर, ये हो जाएगा 10 अपॉन 40 इक्वल टू आर, और यू कैन से आर इक्वल टू 10 अपॉन 40, तो 0 0 गेट कैंसिल, या 10 1 जा 10 4 जा, इट इज 1 बाई 4। So therefore value of R equal to 1 upon 4, which is known as common ratio of the given GP. तो R that is common ratio of the GP is 1 upon 4। तो हमें एक वैल्यू यहां पर मिल गई, क्योंकि हमको देखो फाइंड क्या करना है, GP। क्लियरली वी नीड टू फाइंड GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि GP क्या है, किस फॉर्म में है। तो आइए अभी हम यहां पर फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि कोई भी GP फाइंड करने के लिए वी नीड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो।
तो हमें यहाँ कॉमन रेशियो R 1/4 तो मिल गया, लेकिन अब A की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R 1/4 in equation first. So we should write here from equation first A equals 5 multiplied by 1 minus 1/4, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू क्या है 1/4, तो 5 इंटू 1 माइनस 1/4, और ये हो गया 4 1 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4. इट इज इक्वल टू 5 इंटू 3/4, और 5 into 3/4 becomes 15/4. So we get value of A 15/4, which is known as first term of the GP. So first term of the GP A equal to 15/4. Now we should write here GP, कि अब जो GP है वो क्या है, GP को पूरा हमें यहाँ पर डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, और वो GP है इनफाइनाइट GP तक, तो हम पूरे टर्म्स तो नहीं लिख सकते, बट वी शुड राइट एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स एंड देन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो देयरफॉर AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन इक्वल्स, देखो वैल्यू ऑफ A, सबसे पहले यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म A, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 15/4. देन A इंटू आर, तो A इंटू आर क्या है 15/4 इंटू 1/4, यह आ गया 15/16. तो इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास तो A है और R की वैल्यू है 1/4, तो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1/4 इन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कंटिन्यूअस टर्म्स, जैसे नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएं 1/4 1/4 1/4, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा यहाँ पर. तो 15/4 इंटू 1/4 15/16, 15/16 into 1/4 15/64, and 15/64 into 1/4 15/256 and so on. देखो 4 टर्म्स यहाँ पर भी लिखा गया है, 4 टर्म्स यहाँ पर भी लिखा गया है, एंड सो ऑन बोथ साइड्स. तो ये रहा हमारा GP 15/4 15/16 15/64 15/256 and so on up to infinity. So therefore AR square, AR cube and so on equals 15/4, 15/16, 15/64, 15/256 respectively. और ये कैसा है कि इनफाइनाइट GP, तो यहाँ पर भी एंड सो ऑन करके छोड़ दीजिए बोथ साइड्स. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ट्रिकी, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया और कंप्लीट हो गया. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स आल्सो. और आजकल ऐसा नहीं कि GP है तो ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम और कॉलेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, जैसे भी रेलवेज, बैंकिंग, NDA, JEE, CET एटसेट्रा, तो किधर भी पूछा जा सकता है. तो GP एंड AP एंड HP, जिसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और अभी आगे हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे अगले एक्सरसाइज में कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है और उसके फार्मूले क्या हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है. तो उसको डिटेल्स में हम लोग अगले एक्सरसाइज में इसको स्टडी करेंगे इन द कमिंग वीडियोज. तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और जो भी अगर कोई डाउट है किसी को तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो. सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड. अब यहाँ पर कुछ सब क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 सब क्वेश्चंस हैं, और ये सभी में कुछ समेशन, जिसको हम लोग ग्रीक लेटर में सिग्मा बोलते हैं, तो इसको कैपिटल सिग्मा, ये जो लेटर यहाँ पर है ये कैपिटल सिग्मा है इतना. तो फाइंड फर्स्ट वन, समेशन R इक्वल टू 1 to infinity, रीड एज समेशन R इक्वल टू 1 to infinity 4 into 0.5 रेज टू R. इसको क्या कैसे रीड करोगे फिर से देख लो. समेशन R इक्वल टू 1 to infinity, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, लोअर वैल्यू देन अपर वैल्यू, तो ये हो जाता है R इक्वल टू 1 to infinity. फिर से देख लो, समेशन R इक्वल टू 1 to infinity 4 into 0.5 होल रेज टू R. सेकंड क्वेश्चन है हमारा समेशन R इक्वल टू 1 to infinity -1/3 रेज टू R. एंड थर्ड क्वेश्चन R इक्वल टू 1 to infinity, और यहाँ दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि थर्ड क्वेश्चन मॉडिफाइड है. यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहाँ R इक्वल टू 0 दिया गया है, दैट वन इज इनकरेक्ट. So we should correct it. R equal to 1 to infinity -8 into -12 raised to R.
एंड फोर्थ क्वेश्चन समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0.4 रेज टू n। और फोर्थ क्वेश्चन का मैं भी बता दूं कि फोर्थ क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो इसके लिए मैं दोनों सोल्यूशन के टाइम ये दोनों क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन में हमें करेक्शन करना है r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ इंस्टेड ऑफ 0 वी शुड राइट 1, और इसका जो आंसर रॉन्ग है वहां पर हमने करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया है, तो हमारे सोल्यूशन से इसको मैच करके करेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और अभी ये समेशन की शुरुआत है, सिग्मा नोटेशन की एकदम जस्ट बिगनिंग है। हम लोगों को सिग्मा नोटेशन इन डिटेल्स अभी आगे स्टडी करना है, सेम चैप्टर में, इसी चैप्टर में मिलने वाला है। जो लास्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम लोग सिग्मा नोटेशन के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और उसका यूज भी करेंगे, तो उसमें उसके बारे में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, क्योंकि जो समेशन है ये सिग्मा नोटेशन इट इज वेरी यूजफुल in mathematics, also in physics, और somewhere in the chemistry also। तो इसको यूज करते ही रहना है, क्योंकि आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में आगे जितना स्टडी करोगे वहां पर हमको सिग्मा नोटेशन मिलता ही रहेगा, और एक स्मॉल सिग्मा भी होता है, तो जहां पर आएगा मैं उसको फिर से वापस उसको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज कैपिटल सिग्मा, ग्रीक लेटर है, जो कि यहाँ पर सभी ऑल द 4 क्वेश्चन में सिंबल के फॉर्म में यूज किया गया है। तो ये जो होता है कि अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे भी समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चलो आगे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, वहां एक्सप्लेन करते हैं, सोल्यूशन भी देखते हैं। तो सी द सोल्यूशन फर्स्ट वन, समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 इंटू 0.5 रेज टू r। तो व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले तो इसकी ये मीनिंग है कि देखो, जैसे यहाँ पर ये 4 है, 4 इंटू देन 0.5 रेज टू r, तो 4 जो है ये हमारा टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये फ्री है। देखो यहाँ 4 रेज टू आर, 4 माइनस आर, प्लस आर, अपान आर, कुछ भी नहीं लिखा गया, न तो उसका इंडेक्स है और न ही उसके कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। आर से आर क्या है, ये फ्री है, इंडिपेंडेंट टू द आर। तो अगर ये फ्री टर्म है तो हम इसको समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, ये हमने बाहर कर दिया इसको आउट ऑफ द सिग्मा नोटेशन। तो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0.5 रेज टू आर। ठीक है, क्योंकि आर से रिलेटेड है, तो जब तक हम सिग्मा को एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक हम इसको बाहर नहीं लिख सकते। तो अब आइए देखो, 4 तो हो गया बाहर, तो अब इसको सिग्मा को भी हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये भी सिग्मा हट जाएगा और इसका एक्सपेंशन सामने दिखाई देगा कि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है इसकी मीनिंग क्या है। तो ये जो यहां से यहां तक है, देखो जिसको मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, इतनी टोटल की ये मीनिंग क्या है उसको हम लोग आइए देखते हैं। तो इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखो दिस 4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लोग r की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। तो r इक्वल टू 1, फिर r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और एक एक टर्म प्लस 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 करके लिखते जाएंगे। तो ये क्या एंडलेस प्रोसेस होगा, सॉरी एंड होगा, नहीं होगा, तो ये एंडलेस प्रोसेस में जा रहा है कि लास्ट नेचुरल नंबर हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर इसका लास्ट टर्म क्या होगा वो भी नहीं पता होगा। तो आइए फिर यहाँ पर पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 4 इंटू 0.5 होल रेज टू 1 प्लस 0.5 होल स्क्वायर, देखो हमने r इक्वल टू 1 रखा तो फर्स्ट टर्म मिला, r इक्वल टू 2 क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी है तो r इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रख सकते हो, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। तो 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो सिग्मा हट गया, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी की, ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो यहाँ पर लिख दिया गया एज ए सम ऑफ अ जीपी और जो अप टू इन्फिनिटी। तो फिर से देखो r इक्वल टू 1 0.5 रेज टू 1, r इक्वल टू 2 के लिए 0.5 स्क्वायर, r इक्वल टू 3 के लिए 0.5 होल क्यूब एंड सो ऑन, तो प्लस करके एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग अब ये लिखने के बाद ये भी चेक करेंगे कि ये क्या है, मतलब ये किस टर्म में है, क्या ये जीपी में हो सकता है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अगर ये जीपी में है तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो सभी जगह इक्वल मिलेगा। तो 0.5 स्क्वायर अपॉन 0.5 0.5, 0.5 क्यूब अपॉन 0.5 स्क्वायर 0.5। तो इस तरह से हम लोग T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 करते जाएंगे, तो वी गेट ऑलवेज 0.5 विच इज कांस्टेंट वैल्यू, देयरफॉर दे आर इन जीपी। और कैसा जीपी है,
इनफाइनाइट जीपी है। तो अगर इनफाइनाइट जीपी है तो हमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी यूज करना होगा उसके सम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्लस 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 करके लिखा है, ये समेशन दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो यहाँ पर प्लस करके ही लिखना पड़ेगा। समेशन की मीनिंग होती है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो यहाँ पर ये सिग्मा नोटेशन, ये सिंबल जो रिप्रेजेंट करता था हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ये है इनफाइनाइट जीपी, तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ए क्या है, ए इज 0.5 रेज टू 1 दैट इज 0.5 ओनली, एंड कॉमन रेशियो आर, वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो 0.5, क्योंकि हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया 0.5 स्क्वायर अपॉन 0.5 बिकम्स 0.5। सो इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 4 अपना कांस्टेंट टर्म है जो स्टार्टिंग से आउटसाइड लिखा जा रहा है, तो 4 इंटू 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 माइनस 0.5 ही तो 0.5 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 एज इट इज इंटू 0.5 अपॉन 0.5, तो 0.5 0.5 गॉन, इट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर summation r equal to 1 to infinity 4 multiplied by 0.5 whole raised to r equal to 4 only। ये सिर्फ और सिर्फ इसका सम क्या है 4 है और कुछ भी नहीं है। एंड अगर कोई स्टूडेंट हमें फ्रैक्शन में लिखने के लिए इंटरेस्टेड है तो देखो 0.5 1/2, 0.5 होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, यहाँ पर 1/8 1/16 एंड सो ऑन आता रहेगा। तो उसके लिए a इक्वल टू हाफ एंड r इक्वल टू हाफ, दोनों ही हाफ है। जैसे यहाँ 0.5 है तो ऐसे वहां पर 1/2 लिखोगे। तो अगर फ्रैक्शन में लिखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट यू विल गेट द सेम आंसर 4 ओनली। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर दिया है कि समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1/3 रेज टू r, ये क्या है और कैसे इसका सम निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन भी यूज की गई है। तो आइए सेकंड सम की तरफ चलते हैं। Since r equal to 1 to n minus 1/3 raised to r can be expressed as r equal to, put r equal to 1 2 3 4 5 6 7 and so on up to infinity, मतलब यहाँ पर n टर्म्स लिखा हुआ है बट इट शुड बी infinity। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर हमने n टर्म यूज किया या infinity यूज किया है, यहाँ पर r इक्वल टू 1 टू infinity क्वेश्चन में बराबर है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन के टाइम ये बाई मिस्टेक यहाँ पर n आ गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो उसको भी करेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जब करेक्टेड फॉर्म में हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो ये इन्फिनिटी के फॉर्म में हो गया, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1/3 रेज टू r, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ r क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी रखना है, जितने भी टर्म्स अपने को यहाँ पर शो करने हैं हम लोग उतने टर्म्स को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोथ द प्लेसेस, यहाँ पर बाई मिस्टेकली इट इज n, और ऐसे ही टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक हुआ है तो वहाँ पर भी ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को जहाँ पर मिस्टेक हुई होगी। तो ये अब आइए देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो r इक्वल टू 1 के लिए -1/3, फॉर r इक्वल टू 2 -1/3 स्क्वायर, फॉर r इक्वल टू 3 -1/3 होल क्यूब, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो जैसे -1/3 है, ये अगर स्क्वायर है तो इसका पावर जो साइन है ये प्लस हो जाएगा 1/9, फिर से -1/27 और फिर से यहाँ पर आएगा प्लस 1/81। तो इस तरह से हम लोगों को एक्सपैंड करके उसको कोई फायदा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करके भी कुछ फायदा नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो, वो बेस्ट है। हियर a इक्वल टू -1/3 फर्स्ट टर्म एंड r इक्वल टू T2/T1 कर लेते हैं, r इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ पर -1/3 स्क्वायर अपॉन -1/3 बिकम्स -1/3। सिंस मॉड r इज लेस देन 1, क्योंकि देखो -1/3 का मॉडुलस करोगे तो हो जाएगा +1/3 एंड 1/3 इज ऑलवेज लेस देन 1। यूजिंग फार्मूला फॉर s इन्फिनिटी, जो यहाँ पर फार्मूला लिखा गया सेम यही फार्मूला इधर भी यूज करना है। तो s इन्फिनिटी इक्वल्स a/1 माइनस r, देयरफॉर समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
-1/3 रेज टू r इक्वल्स -1/3 अपॉन 1 माइनस -1/3। अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो इट इज इक्वल टू -1/3 अपॉन 1 + 1/3 बिकम्स, अब देखो 1 + 1/3 बिकम्स व्हाट 4/3। तो -1/3 अपॉन 4/3, 3 गोइंग बाय 3 कैंसिल हो गया, तो वी गेट हियर -1/4। क्या मिलता है यहाँ पर -1/4। देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी या समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1/3 रेज टू r becomes -1/4। So this is the final answer for question number 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समेशन का यूज अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े सीक्वेंस को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी टेक्स्ट बुक में। जो यहाँ पर था r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, जबकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लिखा गया है 0। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन, समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 8 -8 here, -8 into -1/2 raised to r, -8 into -1/2 raised to r। So according to the summation, -8 is independent of r। तो यहाँ पर ये टोटली देखो फ्री है, इसमें r न तो कहीं प्लस है, न माइनस, न तो इसका पावर, न डिवाइड, न इनटू, कुछ नहीं है। तो -8 को हम लोग इजिली आउट ले सकते हैं। तो ये हो गया -8 इंटू समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ रेज टू r। और वैल्यू ऑफ r के लिए पुट r इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, जितना भी वैल्यू रखना है लिख सकते हो। लेकिन क्या हम लोग ये टर्म को लिखते लिखते लास्ट टर्म को लिख पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए इससे बेस्ट है कि 3 to 4 टर्म्स लिख के ही स्टॉप कर दो ना। जब स्टॉप ही करना है तो 3 to 4 टर्म ही लिख के स्टॉप करो, पूरा पेज भर के क्या फायदा। तो ये हो गया -8 मल्टीप्लाइड बाई फॉर r इक्वल टू 1। अब देखो -12 रेज टू 1, तो -12 स्क्वायर, r इक्वल टू 2 के लिए -12 स्क्वायर, r इक्वल टू 3 के लिए -1/2 होल क्यूब, दिस वन प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग r इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक यहाँ पर लिख लिए। तो ये -8, अब ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, अब यहाँ देखो दे आर इन जीपी, ये ऑलवेज जीपी में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। तो माइनस ऑफ इट इज द फर्स्ट टर्म, और जो इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो r -12 स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ, तो यहाँ माइनस ऑफ कॉमन रेशियो भी हो गया। तो इट इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाई -12 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो जाता है 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन 3/2। तो ये 2 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग -1/3। तो वी गेट हियर -8 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। क्योंकि ये सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ वेरी स्मॉल टर्म, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो -8 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। नाउ माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, हियर 8 1 जा 8/3। तो ये हो गया। देयरफॉर यू कैन से समेशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -8 इंटू -1/2 रेज टू r इक्वल टू 8/3। ये मिल गया हमें प्लस 8/3। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका लास्ट और 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, जो जिसका कि प्रिंटिंग मिस्टेक में यहाँ स्टार मार्क लगने का मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक इन द आंसर। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0.4 होल रेज टू n। अब देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो इट कैन बी रिटन ऐसे ही। अगर हम ये यहाँ r लिखते और यहाँ n लिखते तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती, रॉन्ग हो जाता। और यहाँ पर n लिखो, यहाँ पर r लिखो तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही लेटर सेम होने चाहिए। जैसे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ n पावर होना चाहिए। जो भी है इसका रिलेशन n से, तो यहाँ पर n ही होना चाहिए। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
summation n equal to 1 to infinity 0.4 raised to n. So it can be written as for r equal to 1, it is 0.4 raised to 1, that is 0.4. For r equal to, for n equal to 1, 0.4 raised to 1, that is 0.4. For n equal to 2, 0.4 square. So we should write here 0.4 square. For n equal to 3, 0.4 cube, and so on up to infinity. So we see that 0.4 plus 0.4 whole square plus 0.4 whole cube plus and so on up to infinity are in GP. ये ऑलरेडी यहाँ पर GP में ही है. तो अगर ये टर्म्स GP में है तो हम लोगों को आगे इसको क्या करना है, इसका सम निकालना है. और सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.4 एंड कॉमन रेशियो 0.4 होल स्क्वायर अपॉन 0.4 दैट इज 0.4. अगर कोई स्टूडेंट फ्रैक्शन के लिए इंटरेस्टेड है, उनको फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये 4/10 दैट इज 2/5, ये है 2/5 होल स्क्वायर, यहाँ पर 2/5 होल क्यूब एंड सो ऑन. तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं. तो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर, देयरफॉर 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4. ये हो गया 0.4 upon 1 minus 0.4 and 1 minus 0.4 becomes 0.6. So it is equal to 0.4 upon 0.6. One place of decimal in numerator and denominator. चलो into 10 कर दिए तो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गया 4/6. Therefore summation n equal to 1 to infinity 0.4 whole raised to n equals 2/3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, इट गोज बाई 2. तो देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3 हो गया. तो इस तरह से हम लोगों को, अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी तक ऐसे लिखते जाएंगे और प्लस करेंगे टोटल, तो इन्फिनिटी तक तो लिख नहीं सकते, लेकिन उनका सम निकाल के हम बता सकते हैं कि उसका सम है 2/3. तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0.4 होल रेज़्ड टू n इक्वल्स 2/3. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 के सब क्वेश्चन, टोटल 4 सब क्वेश्चन थे, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर. और अभी भी ये एक्सरसाइज के 2 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं. तो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द सेम एक्सरसाइज एंड फॉर द अदर चैप्टर्स फॉर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.